In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say... The European Union says it's close to striking a free trade deal with India. Speaking in Davos, European Commission President Ursula von der Leyen called the agreement historic. The next week. दोस्तों यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट. इस हवाले से मैं लेट मी के फ़र्क जानकर जियो. बात ही है कि कोई स्टेटस की कंपैरिजन ही नहीं है. मतलब एक तरफ भिख मंगे, दूसरी तरफ जो है वो खाते पीते अपने खुद से अपने कदमों पर खड़े लोग नजर आते हैं आपको. तो क्या ये मतलब, ये तो सामने की बात है, सबको पता है. तो इसी तरीके से ये जो है ना कि 1 बिलियन पीस समिट जो ट्रम्प ने यानी कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका के, उन्होंने जो कॉल की थी उसमें पाकिस्तान जो है उसने शिरकत की है. और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो भी इस पीस डील का हिस्सा बने हैं और उन्होंने भी वहां पर विजिट किया है. या कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब. હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર. ભારતીય ઓફિશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે दोस्तों. तो लास्ट 48 घंटे में भारत में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है जो कि दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी ऐसा हुआ नहीं है. तो मदर ऑफ डील जो यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लियन भारत में लेके आ रहे हैं. 26 जनवरी के दिन ये मदर ऑफ ऑल डील साइन होने वाली है, जिसमें $135 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाला है, जो कि 2 बिलियन वर्कर का रोजगार खड़ा कर सकता है. In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility. The European Union says it's close to striking a free trade deal with India. Speaking in Davos, European Commission President Ursula von der Leyen called the agreement historic. The next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. The outlook for the EU trade deal with India. Let's get to Bloomberg Economy Trade and Investigating Agencies reporter Shruti Srivastava. So, Shruti, how significant is this deal? Yeah. Thanks for the question. So this deal is truly significant, as the European Commission President said, that this is, a historic agreement. Now let's first get the facts. This agreement has been in the making for almost 2 decades. The talks first started in 2007, but the talks were suspended in 2013 because of the gap in ambition the two sides had. They were resumed in 2022, and they gained a जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट. इस हवाले से मैं लेट मी ट्राई के
एंड में एक इकोनॉमिक फोरम का चल रहा है भाई, क्या बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोलोगे? समिट बोल सकते हैं। हाँ, समिट चल रहा है। तो सर उसमें सुनने में आ रहा है कटोरा शरीफ भी गया हुआ है, और सर पाकिस्तानी मीडिया का दावा यह है कि इस समय सभी देशों की नजर पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। हाँ, राइट, ठीक है, क्योंकि यार कटोरा शरीफ कटोरा लेके जाएगा, चमकता हुआ चांदी का, तो सर नजर तो जाएगी, आपको पता है। सोने का सर, रिफ्लेक्शन, सोने का। हाँ वो सॉरी सोने का रहेगा, उसमें हीरे जड़े हुए रहेंगे उसमें चारों तरफ, है ना। तो कटोरा शरीफ जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है सर IMF की जो चीफ हैं उनसे मिलेंगे, और उनके मुंह पे फेंक के मारने वाला है जो भी पैसा है उसका IMF का। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सर जहां पे वो गए हैं वहीं के जो EU की जो चीफ हैं उन्होंने थोड़ा झटका दे दिया कटोरा शरीफ को। EU की प्रेसिडेंट, भाई हाँ चीफ ही है, चीफ ही बोलते हैं सर उनको। तो उन्होंने झटका दे दिया सर कि हम डील करने जा रहे हैं इंडिया के साथ में, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। तो सर कटोरा शरीफ पहुंचते ही उनको झटका लग गया कि यार हम तो खुद लेने आए थे पर इंडिया को डील मिल रहा है। खैर वो तो अलग ही कुछ लेने गए था वो। कि फर्क जानकर जियो। बात ही है कि कोई स्टेटस की कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब एक तरफ भिखमंगे, दूसरी तरफ जो है वो खाते पीते अपने खुद से अपने कदमों पर खड़े लोग नजर आते हैं आपको। तो क्या ये मतलब, ये तो सामने की बात है, सबको पता है। तो इसी तरीके से ये जो है ना कि 1 बिलियन जो है वो भारत दे सकता है। एग्जैक्टली भारत के लिए इसके अंदर शामिल होना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, तज्जिया किया है कि वो एक बड़ी इकॉनमी है और उसके पास पैसे की कमी नहीं। बिल्कुल वैसे ही है वो दरअसल डेमोक्रेटिक नहीं है, और उनको लाने वाले जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के ही लोग हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो उनको लाती है, उनको ले जाती है या अपनी मर्जी से काम करवाती है। वहां पर जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको भी देखा गया, और इस तरह से देखने में आया कि तमाम लोग, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तमाम लोगों ने आपस में भी मीटिंग की। मतलब इन लोगों को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती मीटिंग करने की कि ये कहीं और जाकर, और इसी बहाने के कहीं पर अगर पाकिस्तान को इनविटेशन आ गया है तो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आपस में भी मीटिंग कर रहे हैं। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त कराची में होना चाहिए था। कराची में जो मॉल में आग लगी है, जिसमें कई लोग जलकर खाक हो गए या जलकर जिनकी जानें चली गई, उनके पास जाकर उनसे बात करके या उनके लोगों से, उनके फैमिली के लोगों से कोई हमदर्दी का इजहार करते, कोई बात करते। लेकिन उसके बजाय हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा की तरह पाकिस्तान में लोग जलते रहे, मरते रहे या भूखों मरते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज इस वक्त भी देखने में आई। आखिर ये तमाम के तमाम लोग जो है एक तरह से पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से आखिर अमेरिका या किसी भी जगह पर इस मीटिंग के लिए जो है, या किसी भी तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, उसमें शिरकत के लिए